कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें आप 2 सितारा, 3 सितारा, 5 सितारा, 7 सितारा की कैटेगरी में बांट नहीं सकते, जो समय की धारा से बिल्कुल परे होती हैं, जो एक बार बन गई तो बन गई और एक बार बनने के बाद उनका जो चार्म होता है वो समय के साथ साथ बरकरार रहता है या इनफैक्ट कहिए कि निखर जाता है। आज जिस जगह पर हम हैं वो ऐसी ही एक जगह है। वेलकम टू सीजन 3 ऑफ फूड अफेयर्स पावर्ड बाय ज़ीमलो। फूड अफेयर्स के आखिरी एपिसोड में आज हम चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सामोद हवेली। तो मेरे साथ हैं युगदीप सिंह, मैनेजर सामोद होटल। वेलकम युगदीप। थैंक यू तरुण, थैंक यू। युगदीप, इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, मतलब द मोमेंट यू एंटर इनटू द प्रीमाइसेस आपको लगता है आप एक महल में आ गए, अलग ही दुनिया में। कुछ सामोद हवेली के बारे में बताइए कि कितनी पुरानी हवेली है, किनकी है, होटल कब बना? तरुण, ये नाथावत क्लैन के हेड है सामोद रॉयल फैमिली। उनका रेजिडेंस था जयपुर के अंदर and they were the prime minister for Jaipur royalty for a very long time. And very important ठिकाना of Jaipur. So this is the largest compound in the older city apart from City Palace. Okay. So after independence, when of course if you see this is very difficult to maintain. And I'm sure जितना भी ये काम हुआ है ये बहुत मतलब वो ओरिजिनल काम ही है. This is all original and handmade paintings. And I can take at least 40 minutes to explain you the room itself. It is like an encyclopedia. So what happened, just to maintain these things, we had to open our places for tourism. So now we support almost 150 families. Okay. Just Haveli support 150 families. And we get a chance to showcase this legacy to the guests from all over the world. And how old this Haveli is? This is roughly 200 years old. 200 years old? Okay, and still well maintained. Oh yes, it takes a lot of patience and money. And if I talk about this property as a hotel, what is the USP of Samod Haveli? See, USP is that although it is a 200-year-old building, but we have possibly all the modern amenities in the room. We talk really high about our food. We talk really high about our personalized service and the taste. That it's been done very tastefully. So you get more of foreigner clientele or domestic? Mix of both, but mainly it's mainly foreigners. I'm sure they're more inclined towards art, culture. They want to explore the royalty of Rajasthan. I mean, you don't have to recreate anything. You don't have to pretend. You're right. Everything is original. Everything is original. Everything was already there. This has story. I'm sure this living room, the porch area, everywhere, it's a story. If I show you around, every corner has a story. So like this room used to be open only for guests from, So this is something like Diwane Khas. Diwane Khas, almost like Diwane Khas, where only people of same level of, rank or the family or the guests of the royal family would be entertained here. If I talk about, because युगदीप क्या होता है कि ऐसी जगहों पे when people arrive, they expect, हर चीज में authenticity मिलेगी, खाने में आपके जैसे कहते हैं हम मेहमान नवाजी में हर तरह से। खाने की अगर मैं बात करूं, सामोद हवेली की स्पेशलिटी क्या है रेस्टोरेंट की? I mean, you pick out the menu. We don't believe in having 200 items in the menu. हमारे आइटम्स भले लिमिटेड होंगे, but it is authentic. For example, non-vegetarian डिश है यहाँ पे राना सामोद। अच्छा। जगली मुर्ग, खड़ मुर्ग, वो अभी भी ऐसे ही बनता है जैसे कि आज से 200 साल पहले बनता था। So there is no change. There is no change. So if a dish requires to be cooked in ghee, we would cook it in ghee. तो I'm sure मेरे viewers जो हैं वो भी उस बायगॉन एरा को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। बिल्कुल। और मैं खुद एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन आर्ट एंड हिस्ट्री एंड द रॉयल्टी। सो मैं आपको लेकर चलूंगा शेफ के पास। आज हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ बना के देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैं जाता हूँ शेफ के पास, उनसे सीखता हूँ और फिर आपको टेस्टिंग टेबल पे ज्वाइन करता हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू तरुण। तो मेरे साथ हैं शेफ सुरेंद्र सिंह सामोद हवेली से। शेफ,
क्या बना रहे हैं हम आज? आज जंगली मांस बना रहे हैं। जंगली मांस, बिल्कुल। शेफ, आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पे काम करते हुए? यहाँ मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए जी। और मतलब जो लोग यहाँ पर आते हैं, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ फॉरेनर्स, वो जंगली मांस जैसी ट्रेडिशनल रेसिपी को एंजॉय करते हैं? बिल्कुल सर, एंजॉय करते हैं। उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि ये जो है अपने पुराने समय का फूड है। अच्छा। जो कि आपको ऑथेंटिक वे में हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और जंगली मांस की कहानी शायद ये है कि मतलब जब भी राजा महाराजा शिकार पे जाते थे, हाँ, तो वो शिकार के बाद वहीं पर जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते थे वो करते थे। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी। दिस इज समथिंग वेरी ट्रेडिशनल। जो देगची होती है, इस तरह के ट्रेडिशनल डिशेस बनाने का मजा देगची में ही आता है। बिल्कुल। ये घी लेंगे हम सबसे पहले तो। अच्छा शेफ, ये लगभग कितना घी हमने लिया है? सर ये 400 ग्राम के करीब घी है। अच्छा। क्योंकि हम 1 किलो मांस बना रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए इतना हमें चाहिए होता है। और हम लोग मटन यूज कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल। ये बोनलेस है? नहीं, बोन विद बोन भी है इसमें। क्या है, आपके चॉप्स भी हैं, नली भी है, तो सारा मिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल मिक्स है। तो शेफ, घी तो गर्म हो गया, अब हम मटन डालेंगे इसमें। अच्छा, डायरेक्ट घी में पहले मटन? बिल्कुल। ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप सर्दियों में ओपन में कोयले की आंच पे ट्रेडिशनल यूटेंसिल्स में ट्रेडिशनल डिश बनाते हो, तो वो जो खुशबू आती है और जो माहौल होता है ना, तो यू मोर एंजॉय द फूड। जो हमने पोटली बनाई है, हाँ। इस पोटली में हमारे पास दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और छोटी इलायची है। अच्छा, तो बहुत बेसिक मसाला यूज होता है जंगली मांस में, बिकॉज आप जब जंगल में कुकिंग करते हो तो बहुत ज्यादा लेविश इंग्रेडिएंट होते नहीं है। बिल्कुल। तो इसको हम शेफ ढकते नहीं है बिल्कुल भी? नहीं ढकेंगे सर, अभी ये थोड़ा सा भुन जाए 10 मिनट, उसके बाद में नमक डाल के। अच्छा, और नमक भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हम वो आजकल बाजार में जो कमर्शियल सॉल्ट है वो नहीं करते, ये हम ग्रैन्युल्स वाला नमक है। बिल्कुल, जो सादा नमक जो पहले टाइम में मिला करता था, वही नमक हम यूज कर रहे हैं। You know, this is the authenticity that they maintain कि आप जो इंग्रेडिएंट भी यूज कर रहे हो, अगर वो पुराने जमाने के इंग्रेडिएंट होंगे तो वो फ्लेवर वही आएगा। जो हम बात करते हैं कि आज भले ही आप वो दौर बदल गया, वो टेस्ट बदल गया, वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान न रखने से होता है। तो हमने नमक डाला और होल गार्लिक हम डाल रहे हैं, कलियां उसकी। बिल्कुल। और ये जीरा है। अच्छा, ये कितना जीरा है लगभग शेफ? ये 10 ग्राम। 10 ग्राम जीरा। और ये जो मसाले अपन ने पोटली। अच्छा, तो ये पोटली हम उसमें डाल दें। और ये मिर्ची है करीबन 30 के करीब। तो सूखी हुई लाल मिर्च। सूखी हुई लाल मिर्च जो कि हमने गर्म पानी में आधा घंटे तक सोक की है। अच्छा। और उसके बाद में हम जो है इनको इसमें डालेंगे। और ये भी साबुत? बिल्कुल साबुत, मतलब टोटल जंगली। टोटल जंगली। बट इतना रॉ ट्रीटमेंट मुझे कभी किसी रेसिपी में नहीं मिला। तो अब इसको कितनी देर पकाना है? इसको तकरीबन आधा घंटे पकाना है। तकरीबन आधा घंटा? बिल्कुल। अच्छा, तब तक मैं अपनी कॉफी एंजॉय कर लेता हूं। प्लीज। अब ये भुन गया है और फिर हम इसको थोड़ा ऐसे भुनने देते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब ये मिर्चियाँ जो टूटने लगी, हाँ, लहसुन भी गलने लगा। एक्चुअली अभी इस स्टेज पे तो ये स्ट्यू के जैसा लग रहा है कि हर एक चीज का फ्लेवर उसके घी में आ गया है। और अब इसको ढक के फिर कितनी देर और? नहीं, बीच बीच में स्टर करना पड़ेगा ये इसको। अच्छा, हिलाते रहना पड़ेगा। ठीक है। ये अब तैयार हो गया है सर। हाँ, उसमें कलर भी आ गया है। बिल्कुल। और उसने एक्चुअली जो मिर्च हमने डाली थी उसका पूरा रोगन उसने ऑयल में छोड़ दिया है। ये अब तैयार है। आप चाहें तो रोटी लगवा देते हैं, खाना खाइए। तो शेफ, मैं जाता हूँ, युगदीप को ज्वाइन करता हूँ, आप ये मुझे सर्व करवाइए। बिल्कुल। थैंक यू। Tarun, we will first try paneer ka sula, which is a specialty from Samo, which is, you know, we got marination in yogurt. अच्छा. And garlic flavor, and this, of course it's smoked. And that is looking absolutely tempting. Thank you.
तो जो मुझे लग रहा था, द फर्स्ट थिंग यू टेस्ट इज सरसों के तेल का जो एक अपना फ्लेवर होता है वो, और दही की खटास, प्लस अगेन जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, मसालों का फ्लेवर बस इतना है कि आपको फ्लेवर आ जाएगा, मिर्च नहीं लगेगी। एंड पनीर इज एब्सोल्युटली सॉफ्ट। सो ये पनीर टिक्का से अलग है, इट्स मोर ऑफ सरसों, मोर ऑफ राजस्थानी वर्जन। We'll try murka sola, which is Samo's specialty. अच्छा। We add mawa अच्छा। to it, and of course it's smoked and cooked mustard. So it's So it is, I can say this is Samo's version of tandoori chicken. Definitely. Sure. Yeah. So normally when you eat tandoori, it's hard, Yes. but it's very juicy. Because of mawa. Mawa. मुर्का सूला मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। एंड यस, आई कैन सी अ वेरी गुड लेयर ऑफ मैरिनेशन। मतलब मैरिनेशन के अंदर कहीं कोई कंजूसी नहीं है। And you can even taste almonds. मैं वही जानने की कोशिश कर रहा था कि जो स्मूथनेस है फ्लेवर के अंदर, डिस्पाइट ऑफ ऑल द मसालास बीइंग यूज्ड, वो किस वजह से आ रही है? इट कुड बी बिकॉज ऑफ मावा एंड लाइक यू सेड आमंड्स। And it's a very thick marination. It's not this. कई बार क्या होता है, व्हाट्स रॉन्ग विद द तंदूरी क्यूजीन इज कि चिकन या मटन कोई भी मीट अंदर से बहुत ब्लेंड सा रह जाता है। दिस इज नॉट द केस विद दिस पर्टिकुलर डिश। Thank you. तो आप अगर राजस्थान आते हैं और डिशेस ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक डिश में आपको मिर्च खिलाई जाएगी। राजस्थान हैज देयर ओन वर्जन ऑफ सटल डिशेस। So this is Dungar Gwarfali. What is Dungar? Dungar is like smoked flavor, charcoal smoked. So this is cooked on charcoal. Charcoal. No, it's got a smoky flavor. So after you make the dish, वो जो infusion of charcoal. Oh yes. अब मैं घर जाके अपनी मम्मी को बोलने वाला हूँ कि ग्वारफली बनाओ तो उसमें स्मोकी फ्लेवर जरूर दे देना। प्लस एक जो इसमें साबुत हरा धनिया यूज किया है, वो एक क्रंच के साथ साथ फ्लेवर ऐड करता है ग्वारफली के फ्लेवर के साथ। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ग्वारफली, पर ऐसी ग्वारफली मुझे मिले तो आई कैन हैव इट। जनरली क्या होता है, ये जो ओल्ड वर्ल्ड सब्जियां होती हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता नहीं है। आजकल लोग मोर एक्सोटिक वेजिटेबल्स की तरफ जा रहे हैं, बट आई थिंक यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन ग्लैमराइजिंग द ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल। प्रोबेबली आपने शायद उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रखी है, इसलिए वो ग्लैमरस है। Now we're trying lesuni palak. Okay. And I can see flakes of garlic. At the same time, the lesson is not grated or cut into pieces. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, व्हेन आई गॉट टू नो कि हम लोग आज यहाँ पे लहसुनी पालक ट्राई करने वाले हैं, आई थॉट इट विल बी अ पालक का साग टाइप की चीज होगी जिसमें गार्लिक का फ्लेवर होगा। ऑनेस्टली यही दिमाग में पिक्चर आई थी। दिस इज मोर ऑफ, आई थिंक, होल पालक जस्ट टॉस्ड विद लहसुन With mustard oil. So it keeps the flavor of garlic, this spinach, very intact. I mean, this dish will take you more to the continental side of Rajasthan. This can be eaten with cheese, this can be eaten with wine. पालक को ओवरकुक नहीं किया गया है, so उसका क्रंच भी आ रहा है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। मुझे पालक हमेशा से इसी फॉर्म में पसंद था कि यू जस्ट टॉस इट इन लिटिल बिट ऑफ ऑयल, एंड प्लस जो गार्लिक के फ्लेक्स हमने यूज करे वो ऑयल में सिकने से वो जो बर्न्ड गार्लिक का फ्लेवर होता है, दैट इज कमिंग आउट वेरी नाइस। Thank you. जंगली मांस। तो फाइनली जो आज स्टार डिश है हमारी, थैंक यू। यस, आई कैन जस्ट हैव लिटिल बिट ऑफ मसाला और दैट्स इट, थैंक यू। ताफ्तान and khamiri roti. Which one you want to try first? I'll start with khamiri roti, which is familiar to me, then I'll shift to taftan.
माय गॉड, फॉर ऑल द नॉन वेजिटेरियन लवर्स इंक्लूडिंग मी, मैं आपको कसम खा के ये कह सकता हूँ कि आज तक फूड अफेयर्स हमने जितना भी किया है और जितनी भी नॉन वेजिटेरियन डिशेस बनाई है, बी चिकन और मटन, इस डिश के जैसी हमने कोई डिश नहीं बनाई है। द मोमेंट यू टेस्ट इट, वो जो हमने प्योर घी में बनाया है उसका फ्लेवर, प्लस इतने बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में इतना इंटेंस फ्लेवर, मतलब देयर इज नो गार्लिक का बहुत ऐसा भून के या प्याज डाल के और कुछ आपने किया हो। सच अ रॉ डिश एंड सच अ ब्यूटीफुल फ्लेवर। तो अगर आप खाने के ओरिजिनल फॉर्म को, खाने के ओरिजिनल टेस्ट को, जो कि महाराजाओं के टाइम पे या नवाबों के टाइम पे और महाराणाओं के टाइम पे जो चीज़ें चलती थी, अगर आप वो टेस्ट करना चाहते हैं, सामोद हवेली इज़ द प्लेस फॉर यू। आप यहाँ आइए, आपको वो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, वो टेस्ट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने सारे वो ओल्ड वर्ल्ड वंडर्स दिखाए और हमारे व्यूअर्स के साथ हमने इतनी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की। एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी थोड़े दिन पहले आई वाज देयर विद मास्टर शेफ विकास खन्ना एंड इट वाज अ प्लेजर एंड अ वेरी हैप्पी फीलिंग फॉर अस टू नो दैट ही हैज सीन फूड अफेयर्स एंड ही लव्ड इट, द सीरीज। मैं आपके साथ कुछ फोटोग्राफ्स शेयर कर रहा हूं विकास के साथ जो हमारी आई। दीज आर द फोटोग्राफ्स। Thank you so much for being a wonderful audience. We thank all our sponsors. We thank all the people who have supported us in this season throughout. आप लोगों के बिना ये सीजन पॉसिबल नहीं था। आने वाले टाइम में फूड अफेयर्स भले ही आए ना आए, पर आपके साथ हमारा रिश्ता बना रहेगा, खाने के साथ हमारा रिश्ता बना रहेगा। किसी ना किसी फॉर्म में हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय। आई एम श्योर आपने अब तक ज़ीमलो ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर अब भी नहीं किया तो प्लीज़ ज़ीमलो ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि ज़ीमलो एक रेवोल्यूशन है उन लेडीज़ के लिए जो अपनी किचन में अपनी ही स्किल्स से कुछ कमाना चाहती हैं, और उन लोगों के लिए जो बाहर से आकर जयपुर में रह रहे हैं और जिन्हें घर का खाना खाना है। तो अगर आप घर का खाना खाना चाहते हैं, अगर आप घर का खाना सेल करना चाहते हैं, तो ज़ीमलो ऐप डाउनलोड करिए।